Hi everyone. We're just waiting for our guest to join. Hello Jatin. Hi Abhishek. Hello Beam. How's everyone doing? Oh, we have someone from another very interesting brand who has joined. Kharo guys are here. Hi everyone. Hi Kinjal. Why don't you guys start, dropping your questions in the comments. You know the topic. So we're going to be talking about cold pressed oils today. And especially talk about the difference between your cold pressed and refined oils and really break it down for you guys so that it becomes even simpler to understand why cold pressed oils are healthier. 1 second. Hi Shilpa. Okay, Mr. Sahab Chaudhary, someone from the team will get back to you. Let me check. Hi Shweta. Hello Neha. 1 second. Why is this not happening? Can you guys hear me? Am I audible? Okay. What's happening? 1 second. Let me check. Yes. Hi, Binita. Hi, Durlab. Finally, but now we can't hear you. Yes, we can hear you now. Perfect. Loud कैसी हैं and आप? clear. Amazing. All well, आप? All good, ma'am. All good. All मुझे charged लगता up है काम. to all charged up to have a discussion with your audience and giving our perspective about the cold press oil. Absolutely. We were all waiting. थोड़ा join करने में time लग गया. And in the जी. meanwhile, I had already asked everyone to just start sharing their questions also if they have any. We will anyways be talking and covering most of the points. Perfect. For that, I'd just like to introduce you to to your followers. Somebody already knows you, I think. He's saying a hi to you. So Hi. welcome to another episode of Truth Be Told. And today we're going to be talking about why cold pressed oils are, a better choice for you. And we have Durlab with us. He's the founder of an amazing brand called Burma Farms, and they're also available on One Green. And I am a loyalist of this brand. I only use their cold pressed mustard oil for my cooking. I'm very happy with the product. So, Thank you, Neha. so Durlab, if you could just quickly give a brief introduction about the brand, what do you do, and then we'll move forward with the discussion. Sure. So, नमस्कार, मेरा नाम दुर्लभ है. ये दिस इज द टिपिकल लाइन आई हैव फॉर माय इंट्रोडक्शन. ठीक है. तो और गुड़गांव में अगर आप लोग गुड़गांव में हैं तो काफी दिन से हम एक डेयरी ब्रांड और ऑथेंटिक फूड ब्रांड की तरह जाने जाते हैं. मेरा अपब्रिंगिंग एक
उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ है, तो मैंने गांव, फसल और इसको बहुत ही नजदीक से देखा है। एंड बरोसी में वही ऑथेंटिसिटी आई थिंक जो पहले हमेशा से मिलती रही है। बढ़ते भागते हुए परिवेश में हमने थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स किया है, बस उसी ऑथेंटिसिटी, वो जो ओल्ड वे ऑफ प्रोड्यूसिंग जो फूड जो होता था, वही बरोसी का प्रयास रहता है हर वक्त, कि जो चाहे वो हमारे कोल्ड प्रेस ऑयल्स हो, घी हो और दूध हो। तो इस तरह से मैं ब्रीफ में इसको बताना चाहूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अपने तरफ से एक लाइन ऐड, तो व्हेन आई मेट दुर्लभ फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो मुझे बता रहे थे अपने बारे में, एंड ही यूज्ड अ लाइन इन हिज इंट्रोडक्शन, ही सेड कि मैं एक किसान हूँ, मतलब मैं दिल से एक किसान हूँ। और बोल रहे थे कि उन्होंने नौकरी, कॉर्पोरेट जॉब भी करी, सेड कि जब मैं वापस सब छोड़ छाड़ के आया, जब खेती करनी शुरू करी, वहीं पे ही मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे यही करना है। करेक्ट। तो मतलब कॉर्पोरेट करने के बाद में आंसर बहुत क्लियर था कि किसान, वापस से किसान बनने का ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शुरुआत से उसको ही देखा है, लर्न किया है, और काफी रुचि भी रही है शुरुआत से उस इन सब मतलब पर्टिकुलरली फूड को लेके और फार्मिंग को लेके। एंड आज जो अर्बन इंडिया में फूड को लेके जो कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, आई थिंक उसको इस सिंप्लिसिटी के साथ में सॉल्व किया जा सकता है। बट 3-4 पहलू हैं उसके, कि एकदम सप्लाई चेन में, फार्मिंग लेवल पे, देन प्रोसेसिंग लेवल पे, एंड एक और जो है आई थिंक वो सस्टेनेबिलिटी है। इन तीन चार चीजों को अगर कोई भी ब्रांड ज्यादा अहमियत देता है रादर देन ग्रॉस मार्जिन, तो आई थिंक वो रियल सेंस में प्रॉब्लम सॉल्व करने की दिशा में है आई थिंक। और ऐसे काफी सारे ब्रांड्स हैं, हम देख रहे हैं, ये ट्रेंड है, और इस ट्रेंड की जरूरत भी है, क्योंकि आज का जो एजुकेटेड जो कस्टमर है, उनको सब चीज चाहिए, और वो डिजर्व भी करते हैं इसको। एकदम एकदम, जो आपने जैसा कहा कि जो एजुकेटेड, आई वुड कॉल देम मे बी जो मोर कॉन्शियस और अवेयर जो कस्टमर्स हैं, वो ये चीजें उनको चाहिए भी, और वो ये डिजर्व भी करते हैं, बिकॉज वो रेडी हैं, दे आर रेडी टू पे, दे आर रेडी टू एक्सप्लोर बेटर चॉइस, बेटर प्रोडक्ट। एंड वो तो हम देखते ही रहते हैं, इवन हमारे वन ग्रीन पे जैसे हम लोग ग्रो हुए हैं, वो क्लियरली एक टेस्टिमोनियल है टू दिस एंटायर थिंग। तो ग्रेट ग्रेट, चलिए बात करते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल्स की। बहुत चर्चा होता है कोल्ड प्रेस ऑयल, चारों तरफ सुनते रहते हैं हम लोग भी, बहुत कस्टमर्स की भी क्वेरीज आती हैं, हमारे कम्युनिटी में भी ये डिस्कशन चलता ही रहता है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि जैसे ही कोई कोल्ड प्रेस्ड ऑयल स्विच कर देता है, वो इमीडिएटली जाके दे स्टार्ट शेयरिंग इन द कम्युनिटी, आई हैव स्विच टू कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एंड आई एम सो हैप्पी विद डिसीजन। तो आप बताओ कि व्हाई इट इज बेटर, मतलब वो न्यूट्रिशन में क्यों हायर है, एंड रिफाइंड ऑयल की क्या वो इश्यूज है, वो प्रॉब्लम्स है जो हम सबको पता होनी चाहिए। जी, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड उस 2-3 पहलू से बताया जा सकता है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और ये क्यों बेनिफिशियल भी है आपके लिए, और आपके लिए कोल्ड प्रेस ऑयल क्यों एक चॉइस होना चाहिए। तो पहले तो प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि जो मास ब्रांड जो हैं, उसमें अगर आज की डेट में शेल्फ में देखते हैं, तो मोस्टली रिफाइंड हमें मिलते हैं। अब रिफाइंड के केस में कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे रिफाइंड का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें होता है कि ज्यादा से ज्यादा यील्ड लिया जाए, और एक एक मे बी प्राइस भी वहां पे एक प्रॉब्लम है, कि एक रीच में रहने के लिए वो उस यील्ड को लेते हैं, एंड पूरे प्रोसेस में काफी हाई टेम्परेचर यूज होता है, और इस एक्सट्रैक्शन के लिए जो है काफी सारे केमिकल्स भी यूज होते हैं। बिना केमिकल के उतना यील्ड लेना पॉसिबल नहीं है। तो 3 हिस्सों में अगर इस पूरे प्रोसेस को देखें, तो किसी भी जो सीड है, अगर उससे ऑयल निकालना है, तो सबसे पहला अगर जो बेस्ट पॉसिबल वे है, वो कोल्ड प्रेस है। कोल्ड प्रेस में आप उसको ज्यादा हीट ना देते हुए उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं। दूसरा, सेकंड लेयर आ जाता है हीट का, जहां पे आप हीट अप्लाई करते हैं, एंड यील्ड ज्यादा मिलता है आपको। एंड जो बिल्कुल लास्ट में भी बच जाता है, जो कई बार ज्यादा आपको यील्ड लेने के लिए कंपनियां करती हैं, बड़े बड़े ब्रांड करते हैं, उसमें वो केमिकल डाल के उसका एक्सट्रैक्शन होता है। तो वो ब्लीचिंग, जैसे आपने ब्लीचिंग सोडा वगैरह सुना होगा, तो मोस्टली उस केस में क्या होता है कि जो ऑयल आपको मिलता है, उसका यील्ड तो पूरा होता है, बट उसमें कोई ना तो एसेंस बचता है, ना उसमें न्यूट्रिशंस बचते हैं, ना उसमें टेस्ट बचता है। अल्टीमेटली
ये प्रॉब्लम है जो कि मास लेवल पे आज की डेट में शेल्फ में अवेलेबल है रिफाइंड में, और हमें मार्केटिंग की तरह से इस तरह से भी बेचा गया है कि ये तो रिफाइंड है, तो सुनने में ऐसा लगता है कि ये ज्यादा ज्यादा लाभदायक है, इसको ये ज्यादा साफ है, ज्यादा रिफाइंड है। बेसिकली जो इम्प्योरिटीज है उसको निकालते हैं, तो यस, इसीलिए है। यस। थिंग्स सो लाइक और हार्ट, मतलब इतने बड़े बड़े क्लेम्स लगा देते हैं कि बेटर फॉर योर हार्ट, गुड फॉर योर हार्ट। एंड करेक्ट। होता है वो तो मतलब ऑब्वियसली उनको, अगर आप हार्ट की बात करोगे तो वो तो डर जाएंगे, और वो तो स्ट्रेट अवे मतलब ब्लाइंडली आपको ट्रस्ट करेंगे। एब्सोल्युटली, और जबकि ये बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि कोल्ड प्रेस ऑयल जब हम निकालते हैं, तो अगर इसको साइंस की भाषा में अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो कोल्ड प्रेस ऑयल में पूफा और मूफा जो होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, ये ज्यादा मिलते हैं, जो आपके हार्ट की हेल्थ के लिए ज्यादा ज्यादा बेटर हैं, ठीक है। एंड टिपिकली अगर पूफा देखेंगे तो वो ऑयल में काफी ज्यादा मिलता है, विटामिन ई उसमें ज्यादा होता है। इन केस ऑफ हॉट प्रेस में ये सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, तो आपके पास यील्ड तो मिलता है, ऑयल तो मिलता है, बट उसके जो न्यूट्रिशन है, जो उसकी गुडनेस है, वो आपके पास तक नहीं पहुंचती है। चाहे और अलग अलग अगर लाभ देखते हैं तो जैसे आपके हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, आपकी मेंटल फंक्शनिंग के लिए काफी जरूरी है, आपकी स्किन के लिए काफी जरूरी है। तो ये कोल्ड प्रेस ऑयल इसलिए आपके लिए, मतलब ओवरऑल अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके टेस्ट के लिए भी अच्छा है, अरोमा के लिए भी अच्छा है। अगर आप देखिए, और हमें लगता है कि एक जो, और कई बार हम भी अपने कस्टमर से पूछते हैं, कस्टमर के लिए एक चीज बड़ी थोड़ा मुश्किल होता है कि उसको पहचाने कैसे, पहचाने कैसे कि कोल्ड प्रेस ऑयल कैसे, तो एक तो रिफाइंड है, वहां तो आप बिल्कुल ही समझ सकते हैं कि तो रिफाइंड है, बट हॉट प्रेस और कोल्ड प्रेस में मोस्टली ये आता है कि किस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं। करेक्ट। तो एक तो टेस्ट जो है उसमें, अरोमा जो है वो ज्यादा होता है कोल्ड प्रेस ऑयल में, ठीक है। एंड अगर हमने, जो हमारा अनुभव रहा है जब भी, क्योंकि हम शुरुआत से ही कोल्ड प्रेस ऑयल ही एक्सट्रैक्शन करते आए हैं, उसमें जो ऑयल का जो कलर है वो थोड़ा हेजी होता है, थोड़ा थोड़ा हेजी होता है। उसका ये भी हो सकता है क्योंकि हम उसको मल्टी लेवल फिल्टरेशन जैसे एक बड़े मे बी लार्ज स्केल पे प्रोसेसिंग होती है वो नहीं करते हैं, तो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट ऑयल दिखता है। बट हमारे केस में जब भी हमने ऑयल निकाला है, वो थोड़ा सा, चाहे वो ग्राउंडनट ऑयल हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, वो थोड़ा हेजी रहेगा। कई बार नीचे भी आपको जो कोल्ड प्रेस जब फिल्टर होने के बाद भी थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो कई बार नीचे बैठ जाते हैं। तो कस्टमर को समझने की जरूरत है कि वो इंप्योरिटीज नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीड जो कि नीचे जाके बैठ गया है। तो इसको भी समझने की जरूरत है, बट ये एक वन ऑफ द पहचान है कि आप इससे कोल्ड प्रेस ऑयल को पहचान सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। एंड एक चीज और बताइए, मतलब लेबल देख के मैं कैसे समझ सकती हूँ? व्हाइल यू सेड रिफाइंड ऑयल, तो भाई मतलब वो तो लिखा ही रिफाइंड रहता है, तो उसमें तो कोई मतलब कुछ समझने वाली बात नहीं है, कुछ नया सीखने वाली बात नहीं। बट जी बिटवीन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स ऑल्सो समटाइम्स हो सकता है कोई आपको कोल्ड प्रेस ना हो, वो सिर्फ बोल रहा हो कोल्ड प्रेस, या काफी लूजली यूज कर रहा हो इस वर्ड को, जी तो बॉटल पे लेबल पढ़ के कैसे समझ सकती हूँ? बिकॉज एक चीज तो है कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट बहुत सिंपल होती है। जी सिंपल चीज जो ऑयल है बस वही लिखा रहता है और प्रोसेस लिखा रहता है। और मैं क्या, मतलब व्हाट आर द थिंग्स टू वॉच आउट फॉर अगर मैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में भी? तो देखिए, लेबल, क्योंकि अगर कोई इतना स्मार्ट है कि अगर वो लेबल पे कोल्ड प्रेस लिख रहे हैं, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जनरली ट्वीट कर लेते हैं। तो लेबल देख के पहचान पाना तो मुश्किल हमें लग रहा है। इसमें इसमें आपको, कस्टमर को जो आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए, वो उसके टेक्सचर को देख के, जब कुकिंग के लिए उसको यूज करते हैं, वो डिफरेंस उसमें तब समझ में आता है। तो और उसमें आई थिंक सही प्लेटफॉर्म, सही ब्रांड की अवेयरनेस होना कि कौन लोग एक्चुअली में कौन से ब्रांड ऐसे हैं जो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर कोई इस लेबल को लेके हमें थोड़ा सा अभी भी ऐसा हमें डाउट है कि कोई अगर गलत क्लेम कर रहे हैं, तो वो पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो रादर देन मेरे ख्याल से प्रोडक्ट की परख होना ज्यादा जरूरी है, ब्रांड की परख होना ज्यादा जरूरी है, और एक कहां से आप ले रहे हैं। आई थिंक जैसे वन ग्रीन एक इंपॉर्टेंट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें इस तरह के ब्रांड्स मिलते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है।
कुछ प्रोसेस के बारे में भी हमारा व्यू है। प्रोसेस को भी हम थोड़ा समझाना चाहेंगे कि किस तरह। आप बीच में फ्रीज हो गया था, आप सुन पा रहे हैं, बताइए। अच्छा जी। तो कोल्ड प्रेस का पहले का हिस्ट्री देखते हैं। जैसे हमने कहा कि इसको 3 तरह से ही देखना चाहिए, और बरोसी में हम किस तरह से इसको पूरी एंड टू एंड फ्रॉम सप्लाई चेन टू डिलीवरी एट योर डोर स्टेप कैसे कंट्रोल करते हैं। तो टिपिकली अगर मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं तो हम पटौदी में बेस्ड हैं। पटौदी में जितना भी जो एग्रीकल्चर है वो मस्टर्ड का ही होता है। एंड वहां पे मस्टर्ड के केस में देखेंगे तो काफी जीएमओ का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हाँ। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको किसान के साथ काम करना होता है। किसान को समझना होता है कि वो कौन सा सीड यूज कर रहे हैं, वो कौन सी फसल यूज कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप प्रोसेस कोल्ड प्रेस का भी यूज करेंगे और अगर सीड जो है वो ठीक नहीं है तो आधी प्रॉब्लम ही सॉल्व होती है। तो हमारा काम क्या है कि हम ये काम जो है किसान के लेवल से शुरू करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा हम समझते हैं किसान की भाषा, और किसान मतलब अगर हम तो ये कहते हैं कि अगर हमें तमिलनाडु में भी अगर अगर छोड़ दिया जाए किसान के पास में, तो भी बिना कम्युनिकेट करके भी हम बॉडी लैंग्वेज से उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम को पहले हम गुड सीड कलेक्ट करके जो जो हम प्रोक्योर करते हैं फार्मर से, वो पहला प्रॉब्लम हम वहां सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है कि पहले जो ओल्ड टाइम जब होता था तो ये पहले बैल कोलू होते थे। कोलू को बैल जो घुमाता था, और जब मशीनें बड़ी नहीं होती थी तो ऑयल का एक्सट्रैक्शन इस तरह से होता था। अब आज की डेट में ऐसे बैल और इतना जगह तो नहीं है, जगह तो फिर भी है, पर अब बैल नहीं बचे हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है कि अब बहुत ही इनोवेटिव मशीन्स आ गई हैं, और वो मशीन में पूरा जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल पुराने ही जैसा है, जिसमें कि वुड यूज होती ओके। है उसको क्रश करने के लिए। तो पहले जो जो बैल वाला जो जो मोशन जो है वो मोटर से होता है, बट बाकी का सारा जो भी जो प्रोसेस जो पहले फॉलो होता था वही होता है। एंड पूरा का पूरा एक्सट्रैक्शन जो है दो लकड़ियों के बीच में उस सीड को क्रश करने के बाद में, और बहुत ही धीरे धीरे लो टेम्परेचर पे वो ऑयल जो है ड्रिप बाई ड्रिप, मतलब एक एक ड्रॉप बाई ड्रॉप हमें मिलता है। तो तब जाके जो हमारी एक बॉटल में आपके पास जो भी ऑयल पहुंचता है वो एक एक्चुअली में वन ड्रॉप बाय ड्रॉप वो नीचे निकलता है, एंड देन हम आपको उसको पहुंचा पाते हैं। तो इस पूरी वुड का रीजन ये होता है कि वुड की वजह से टेम्परेचर ऊपर नहीं जाता है। मेटल अगर आप मेटल में क्रशिंग करेंगे तो टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, करेक्ट। तो वुड का प्रेस होना भी बड़ा, वुड की प्रेस करना भी, क्रशिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है इसके इसमें। एंड उसके बाद भी फर्दर जो है हम इसको ग्लास बॉटल में विच इज सस्टेनेबल, जो कि कोरोवेटेड बॉक्सेस हैं, वो भी पूरा जो है सस्टेनेबल है। एंड जीरो यूज ऑफ प्लास्टिक है, अगर भरोसी के आप प्रोडक्ट देखेंगे। तो एकदम हम एकदम। मतलब इसको होलिस्टिकली सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपके सारे टच पॉइंट्स एंड स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग is following all the rules of sustainability and organic farming आप बोल रहे थे, बिकॉज ये एक्चुअली डिस्कशन मैं भी काफी, हमारी भी बातचीत होती रहती है इस फील्ड के लोगों से, कि बहुत बार क्या होता है प्रोसेस को तो ठीक है आप बोलते हो कि जैसे आपने बोला मैं कोल्ड प्रेस प्रोसेस यूज कर लूंगा या वुड प्रेस प्रोसेस यूज कर लूंगा, बट जो एक्चुअल जो मेरी यील्ड जो जो हुआ है, जो खेती हुई है और जो वो ग्रो हुआ है, क्या वो भी सही तरीके से ग्रो हुआ है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, So, करेक्ट। so, so yeah, great job, and in fact, that's exactly the reason why you are doing such a fantastic job. और आपकी brand मतलब थैंक यू। जैसे हम लोग वन ग्रीन में तो हम ऑनेस्ट ब्रांड्स को ही क्यूरेट करते हैं, यू आर डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ब्रांड्स देयर, मतलब आप जो बोलते हो वही आप पहुंचाते हो कस्टमर तक। थैंक यू। एंड एक चीज़ और बताइए कि ये आता रहता है प्राइस को लेके, काफी कुछ आता रहता है, तो मैं तो हमेशा लोगों को यही बोलती हूँ कि जब तुम लोगों के मेडिकल बिल्स आते हैं तब तब हम लोग जब एक बार या दो बार भी नहीं सोचते हैं, एंड वी रियली डोंट माइंड स्पेंडिंग मनी माइंडलेसली, टू बी ऑनेस्ट। अगर डॉक्टर मतलब 5 जुकाम खा भी 5 टेस्ट लिख देता है, आप उसमें जाके वो करने के लिए तैयार हो, लेकिन अपने खाने में जो रोज का खाना है जिसको हम घर का खाना कहते हैं, मतलब कहने को तो हम लोग बोल रहे हैं कि मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, बट क्या जी, वो घर ठीक तरीके से बन रहा है, ठीक तेल में बन रहा है, ठीक चीजों से बन रहा है, उसको भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सो ठीक कह रहे हैं। ये जो मैथ्स है वहां लोग
जाते हैं, बट मैं सबसे अर्ज करूंगी कि ये मैथ आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो आपको शॉर्ट टर्म में शायद आपको थोड़ा सा पिंच करे, बट ट्रस्ट मी लॉन्ग टर्म में आपको शायद कभी जरूरत ही ना पड़े, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। इनफैक्ट ये जो सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये सारे हमारे बैड हैबिट्स और बैड चॉइसेस की वजह से। इसमें कोई करेक्ट। क्या, इसमें तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई, आई मीन अदर देन ऑब्वियसली कोविड, जो I mean just hit everybody by surprise, but everything else I feel is what is in our control, it's in our hand. करेक्ट। सो जैसे मतलब प्राइस को लेके हमारा व्यू इस तरह से है, अगर देखिए जनरली जो सस्टेनेबल ब्रांड्स हैं और जो कि ऑथेंटिक ब्रांड भी हैं, उनकी जनरली कॉस्ट जो है वो रेगुलर जो एक ब्रांड है उनसे थोड़ी ज्यादा होती है। उसका एक मतलब एक रीजन हमें, बाकी तो बहुत सारे रीजन होते हैं, बट एक रीजन हमें बहुत ही क्लियरली समझ में आता है कि और क्योंकि शार्क टैंक अभी आजकल चल रहा है तो काफी ग्रॉस मार्जिन तो बहुत ही कॉमन टर्म हो गई है। तो किसी भी बड़ी कंपनी के लिए ग्रॉस मार्जिन को बढ़ाना ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर ग्रॉस मार्जिन का मतलब है कि जैसे जैसे आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करते जाएंगे आपके ग्रॉस मार्जिन बढ़ते जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करते 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 हम लोग वहां पहुंच गए हैं कि हम प्रोडक्ट के साथ खिलवाड़ करना चालू कर दिया है। तो बस प्रॉब्लम इतनी सी है, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जाए, और कस्टमर को भी ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो 10-20%, ऐसा भी नहीं कि बहुत स्काई रॉकेट ज्यादा होगा, बस 10-20% का ही फर्क होता है। 10-20% अगर आप एक थोड़ा अवेयर चॉइस लेते हैं, थोड़ा उन ब्रांड्स के बारे में पढ़ते हैं और वो प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको वो पिंच नहीं करेगा। हमारा मानना ऐसा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, एंड वी टोटली अग्री विद यू। इनफैक्ट इसी वजह से हम लोगों ने वन ग्रीन पे हम लोग ना काफी चीजें इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, सो दैट कंज्यूमर कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। मतलब हम आप उनको लिटरली, मतलब हर प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है वो समझने के लिए, प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट समझने के लिए, क्या क्या चीजें हैं टू वॉच आउट फॉर, क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या सही है क्या गलत है, हम ये हमेशा, इनफैक्ट हमारा यही एंडेवर है, एंड दैट्स एग्जैक्टली द रीजन व्हाई वी हैव, आई मीन वन ग्रीन केम इनटू बीइंग, क्योंकि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना था जहाँ पे हम लोगों को हेल्प कर पाए, फैसिलिटेट कर पाए। तो मतलब हम भी नहीं बोल रहे कि आप ब्लाइंडली आओ और जस्ट पिकअप व्हाटएवर यू वांट। यस, आप वो भी कर सकते हो, ट्रस्ट मी, बिकॉज हमने सारी हैवी लिफ्टिंग कर ली है यहाँ पे जब हमने ब्रांड आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे लिस्ट किया। बट उसके अलावा भी आपको पढ़ना है, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, लेबल के लेवल पे ब्रांड के बारे में समझना है, इट्स ऑल राइट देयर। एंड लाइक यू राइटली सेड, आप वो 10-20% के डिफरेंस के लिए मुझे नहीं लगता किसी को भी अपने हेल्थ के साथ ऐसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, एकदम एकदम। कुछ अगर ऑडियंस के भी कोई क्वेश्चन है तो वी कैन सर्टेनली। एकदम, आई थिंक मैं मतलब a lot of people were asking some few things। किसी ने कुछ A2 घी के बारे में ही फिर से बोला था। while I know हम लोग इनफैक्ट घी पे डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट टाइम, बट अगर कोई है जो जानना चाहते हैं तो we'd like to hear from you also. Maybe you can just take couple of minutes and tell us about A2 घी, because इसको लेके भी कंफ्यूजन रहता ही है हमेशा, और जितना आई फील जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले उतना अच्छा है, जगह जगह से मिले। करेक्ट। तो देखिए प्राइमरली क्योंकि हम शुरुआत भी हमारी डेयरी से हुई है, तो A2 जो है एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो तो दूध में दो तरह के प्रोटीन मिलते हैं हमें, A2 और A1। ज्यादातर जो गाय हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है, इनमें ना तो स्पेसिफिकली A2 पूरी तरह से मिलता है और ना ही A1 पूरी तरह से मिलता है। कुछ जो देसी ब्रीड हैं जो कि बिल्कुल प्योर हैं इन ब्रीड के वाइज, मतलब जहां पे उनकी पूरी डीएनए के साथ, उनकी ब्रीड के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, वहां पे स्पेसिफिकली हमें A2 प्रोटीन वाला दूध मिलता है। जैसे अगर नॉर्थ में आप बात करेंगे तो आपको साहिवाल है, राठी है, थार पारकर है, ये कुछ काफी कॉमन आपको ब्रीड मिलेंगी। अब अगर आप राजस्थान और गुजरात की तरफ चले जाते हैं तो गिर और कांग्रेज, जो अब जनरली सड़क, जो एक काफी बल्कि सी जो गाय जो राजस्थान के लोग जिनको लेके चरवाहे लेके घूमते हैं, वो कांग्रेज है। एंड अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं तो वहां के हल्लीकर इज वन ऑफ द नोन ब्रांड। तो जितनी भी जो इंडियन नेटिव काउज हैं, इनका जो दूध प्रोड्यूस होता है
वो A2 काउ मिल्क कहलाता है। तो क्योंकि उसमें A2 टाइप प्रोटीन आता है, एंड उस दूध से जो घी बनाते हैं, अब उस पहले तो इंपॉर्टेंट है कि दूध कौन सा है, राइट। फिर उसके बाद में प्रोसेस आ जाता है कि अगर अब हमारे पास एक्सेस है ऑफ A2 काउ मिल्क, तो फिर उसके बाद में प्रोसेस है कि वो किस प्रोसेस से बनाया जा रहा है। और टिपिकली जो एक पहले जैसे हमने कहा, यहां पे भी हमारा मोटा मोटा ब्रांड का जो थीम जो है वो उसी तरह से करते हैं, पहले सोर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर प्रोसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एंड देन फिर मे बी पैकेजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड प्रोसेस में क्या है कि ये जो घी जो हम बनाते हैं उसको पूरी तरह से पहले दही में जमाया जाता है, उसको कल्चर करके दही जमा के, एंड देन फिर उसको चन करके जो उसका बटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस बटर से हम उसको घी बनाते हैं। तो A2 काउ घी वो घी है जो आपको A2 काउ मिल्क से मिलता है, राइट। तो हमारे पास जैसे 3 तरह के दूध हैं। एक जो हम दूध बेचते भी हैं, कस्टमर के लास्ट माइल तक हम गुड़गांव और दिल्ली में हमारा दूध जाता भी है, बट बाकी और पैन इंडिया तो नहीं जा पाता क्योंकि दूध बहुत ही कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रोडक्ट है। तो हम बफेलो मिल्क है उसी का हमारे पास उसका एक घी है, एक हमारे पास A2 काउ मिल्क है, हमारे पास उसका एक वर्टिकल है, एंड देन वी हैव कल्चर्ड काउ घी जो कि मिक्स जो दूध होता है गाय के दूध का, उससे हम बनाते हैं। तो ये 3 वेरिएंट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हैं। एक चीज और हमें इसमें ऐड करनी थी A2 की, क्योंकि बात हुई है काफी सारे कंज्यूमर्स को, क्योंकि और हमें ये हमारे इंस्टाग्राम पे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि बफेलो मिल्क कौन सा होता है, बफेलो मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है। तो आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि बफेलो मिल्क 100% A2 मिल्क होता है। सो A2 टाइप प्रोटीन बफेलो मिल्क में भी होता है, बट उसका उसका नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है, वो थोड़ा हैवी होता है, उसमें कैलोरीज ज्यादा होती है, वेरेज काउ मिल्क ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपकी हेल्थ के लिए, वो लाइट होता है और उसके अलग अलग और भी कई सारे गुण हैं। तो इस तरह से आप उन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट A2 प्रोटीन दोनों में ही आता है। गॉट इट, गॉट इट, ग्रेट। आई थिंक बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने दुर्लभ जी। आई एम श्योर आवर फॉलोअर्स, people who are watching us also right now, they'll be greatly benefited, because क्या होता है ये ना, थोड़ा सा वही है, कंफ्यूजन हो जाता है, और प्लस आप इतनी जगह जगह से पढ़ लेते हो, खुद से पढ़ते हो, खुद गूगल करते हो, कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी भी कुछ व्यूज आ सकते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकती है, इसलिए कंज्यूमर्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझाया है, एंड आई एम श्योर दिस विल they'll find it very very helpful as well. So great. आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? I think we have mostly covered everything that we wanted to discuss today. नहीं, आई एम गुड। हम तो चाहते हैं कि ऐसे डिस्कशन और भी होते रहें, जितना हम इंफॉर्मेशन कस्टमर्स के पास तक पहुंचा सकें, उनकी क्वेरी और उनके कुछ कंसर्न्स हैं उनको सुलझा सकें, तो उतना ही अच्छा है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, it was lovely having you, and we'll probably do a part 2, and sure. Yeah, all the best, Durlabh. Thank you so much, and thank you everyone who had tuned in. Thank you. And thank you. Yes, this is चलिए, नमस्कार। Thank you everyone. Bye bye. Thank you. Bye.